Hello students, I am Pragati Kalambe welcomes you all on my channel which is for 12 Commerce Bifocal Banking. I hope my videos are helping you all for the subject of banking. In the last video we have studied first type of security, that is advances against goods with its difficulties and precautions. In this video we start with the next type of security, that is advances against documents of title of goods. You all know that documents of title of goods means the ownership documents. Now, documents of title of goods means documents indicating the possession of goods, the actual possession of goods. Let's start with the definition or meaning. Documents of title of goods means a written document or written instrument used in ordinary course of business as a proof of possession of goods. Okay, it is a proof that that person or that borrower has the possession of that goods, and then bank can sanction the loan amount against that title of goods or that document of title of goods. For example, railway receipt. You transfer your goods from one place to another place. The railway company gives you the receipt that the railway company received your goods for the transfer of goods. Okay, that receipt is known as a railway receipt, and that receipt is useful for you that you can take a loan against that receipt. So advances against documents of title of goods. आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स, उसके अगेंस्ट यू कैन गेट द लोन मनी फ्रॉम द बैंक. ओके, द possessor of the document to transfer or receive the goods thereby represent. ओके, मीन्स जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो क्या कर सकता है, वो बैंक के पास रिप्रेजेंट कर सकता है और उसके अगेंस्ट बैंक से लोन अमाउंट सैंक्शन करवा के ले सकता है. ओके, इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस रिसीट, रेलवे रिसीट एक्सेट्रा. क्लियर, समझ में आया? It is a written instrument used by ordinary course of business as a proof of possession of goods. Okay, मैंने रेलवे में goods transfer किए, it means railway receipt. Railway receipt is given by railway company. Okay, it is a written instrument. Railway receipt ये मेरा document है of title of goods. It is a written instrument given by railway company to me that railway company has the possession of my goods, जो मैंने ट्रांसफर करने के लिए रेलवे कंपनी को दिए. ओके, तो रेलवे कंपनी मुझे क्या देगी, रेलवे रिसीट देगी. ओके, एंड दैट रेलवे रिसीट इज नोन एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स. ऐसे अनदर डॉक्यूमेंट्स आर बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस रिसीट, एयरवेज बिल. दिस ऑर आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स. ओके, important document of title of goods. The first is bill of lading. Now, what is the mean by bill of lading? It is a document issued by shipping company acknowledging the receipt of goods for carrying to the specific port. Okay, mostly bill of lading is used in the transfer of goods by ship. अगर goods ship से transfer हो रहे हैं तो वहाँ पे bill of lading use किया जाएगा. Okay, when the goods are transferred to the ship, goods मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पोर्ट तक लेके जाते हैं और पोर्ट से वो गुड्स शिप में लोड किए जाते हैं. आफ्टर दैट शिपिंग कंपनी गिव्स यू अ रिसीट दैट the good received by shipping company. Okay, that receipt includes the quality, quantity, rate and amount of the goods. That receipt is known as a bill of lading. Okay, आप जब शिपिंग कंपनी के पास गुड देते हैं, शिप पे गुड लोड करते हैं, तो शिपिंग कंपनी एक रिसीट इशू करती है. ओके, वो रिसीट पे क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, रेट ऑफ द गुड्स, डिस्काउंट कितना दिया है, शिप का नाम क्या है, पोर्ट कौन सा है, ये सब मेंशन किया होता है. वो उसको बोला जाता है, वो रिसीट को बोला जाता है बिल ऑफ लेडिंग. आपके गुड्स शिपिंग कंपनी के पास है, शिपिंग कंपनी possess that goods is known as a bill of lading. Clear? There are three types of bill of lading. There are three types. The first type is clean bill of lading. Okay, when the bill of lading begins with the words ship in good order and condition. Okay, bill of lading includes the words गुड ऑर्डर एंड कंडीशन. आपके जो गुड्स हैं वो गुड कंडीशन में है और गुड ऑर्डर में हमारे पास है. व्हेन शिपिंग कंपनी स्टेट दैट योर गुड्स आर इन गुड कंडीशन एंड गुड ऑर्डर, द बिल इज नोन एज अ क्लीन बिल ऑफ लेडिंग. ओके, क्लीन मीन्स आपके गुड्स अच्छे कंडीशन में है, अच्छे ऑर्डर्स में है. ओके, सेकेंड इज क्वालिफाइड बिल ऑफ लेडिंग. व्हेन द गुड्स गेट डैमेज, बिल बिकम्स द क्वालिफाइड. ओके,
ऊपर हमने देखा क्लीन बिल ऑफ लेडिंग में वहां पे क्या वर्ड्स आया शिपिंग कंपनी से, शिप्ड इन गुड ऑर्डर एंड कंडीशन, आपके जो गुड्स है इज इन गुड कंडीशन एंड इज इन गुड ऑर्डर, बट व्हेन द गुड्स गेट्स डैमेज, ठीक है, अगर जब गुड्स शिप पे लोड हो रहे तब डैमेज हो गए, मिसप्लेस्ड हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो बिल ऑफ लेडिंग में जब ऐसा वर्ड आएगा क्वालिफाइड, इट मीन्स योर गुड्स गेट डैमेज, वो गुड कंडीशन में नहीं है, उसको बोला जाएगा क्वालिफाइड बिल ऑफ लेडिंग। ओके, द थर्ड टाइप इज थ्रू बिल ऑफ लेडिंग, when the goods sent partly by sea and partly by land and vice versa. Okay, in case your goods are sent by partly with some vehicle and then partly by ship, partly with air, partly with ship और partly with land, देखिए उसको बोलते हैं थ्रू बिल ऑफ लेडिंग। कोई भी एक व्हीकल से या कोई भी एक मीन्स से आपका गुड्स ट्रैवल नहीं होता है, आपका गुड्स अलग अलग पार्ट में ट्रैवल किया जाता है, उसको बोलते हैं थ्रू बिल ऑफ लेडिंग। ओके, 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग के। फर्स्ट टाइप क्या है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग, व्हेन योर गुड्स आर इन गुड कंडीशन। कौन सा बिल इशू किया जाता है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग। व्हेन योर गुड्स गेट डैमेज, सेकेंड टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग इज क्वालिफाइड बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, जब कुछ डैमेज हो जाते हैं क्वालिफाइड बिल ऑफ लेडिंग इशू किया जाता है। व्हेन योर गुड्स सेंड पार्टली बाय लैंड पार्टली बाय सी, उसको बोलते हैं थ्रू बिल ऑफ लेडिंग। क्लियर, देयर आर 3 बिल ऑफ लेडिंग and bill of lading is issued by shipping company. Okay, next document is dock warrant. Okay, a dock warrant is a quasi negotiable instrument issued by dock company stating that the goods described therein are deliverable to the person named in the warrant. Okay, dock warrant is a quasi negotiable instrument. हमने negotiable instruments, types of negotiable instrument में देखा था this concept, quasi negotiable instrument, so which instrument are not फुल्ली निगोशिएबल, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ओके, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्वासी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग ट्रांसफर्स कर सकते हैं, बट उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, इज नोन एज अ क्वासी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट इशूड बाय डॉक कंपनी, जैसे शिपिंग कंपनी होती है वैसे डॉक कंपनी होती है, स्टेटिंग दैट गुड्स डिस्क्राइब देयरिन आर डिलीवरेबल टू द पर्सन नेम इन द वारंट। ओके, मतलब जो गुड्स रिसीट में लिखे हुए हैं उसको पर्सन को ट्रांसफर किए जाएंगे, वो रिसीट जब इशू की जाती है वो रिसीट को बोलते हैं डॉक वारंट। ओके, मोस्टली जब गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डॉक तक लेके आते हैं। ओके, जब गुड्स डॉक में डिलीवर होते हैं वहाँ पे एक रिसीट इशू होती है, हमारे पास आपके गुड्स रिसीव हो गए, आफ्टर दैट जो गुड्स जिसको डिलीवर करने हैं वो गुड्स डिलीवर हो जाएंगे, ये रिसीट को बोला जाता है डॉक वारंट। ओके, एंड डॉक वारंट इज इशूड बाय डॉक कंपनी। ओके, द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज वेयर हाउस रिसीट। ओके, इट इज अ रिसीट इशूड बाय वेयर हाउस कीपर सर्टिफाइंग दैट गुड्स मेंशन इन द रिसीट हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फॉर स्टोर कीपिंग। ओके, वेयर हाउसेस मीन्स गोडाउन्स। ओके, जब गोडाउन का कीपर जो होता है, वेयर हाउस कीपर के पास गुड्स मिलते हैं, रिसीव होते हैं, वो एक रिसीट इशू करता है कि यस आपके गुड्स मुझे मिल गए, नाउ वो मेरे पास रहेंगे जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती। ठीक है, उस रिसीट को बोला जाता है वेयर हाउस रिसीट। द रिसीट इज नोन एज अ वेयर हाउस रिसीट। ठीक है, वेयर हाउस इज ऑल्सो नोन एज गोडाउन्स। ओके, नेक्स्ट रेलवे रिसीट। नाउ रेलवे रिसीट के बारे में मैंने अभी बोला, इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेलवे कंपनी acknowledging the receipt of goods and undertaking to carry the goods delivered to the place mentioned therein. Okay, it means हमने गुड्स रेलवे में लोड किए, उसके बाद उन्होंने एक रिसीट इशू की दैट योर गुड्स रिसीव बाय अस एंड वी आर कैरिंग दैट गुड्स टू द डिलीवर्ड पर्सन, जो जिसको डिलीवर करना है वहाँ पे गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, वो जो गुड्स रिसीट में लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं रेलवे रिसीट। ओके, these all are the types of document of title of goods। ये सारे रिसीट्स, ये सारे जो वारंट्स हैं हम लोग बैंक के पास रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट बैंक हमें क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा या लोन अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, these all receipts or these all warrants are used as the collateral assets. Clear? Next, now what are the difficulties faced by bank while sanctioning the loan against this all receipts and all warrants? Okay, the first is greater risk of fraud and dishonesty. Okay, fraud हो सकता है, dishonesty हो सकती है। It includes any false description of the goods, misleading of information,
dishonesty by borrower by making the false changes in the document. Okay, for example, as a person मैंने क्या किया, यहाँ से गुड्स ट्रांसफर किए, गुड्स की क्वांटिटी थी 10 यूनिट्स. ओके, जब मैंने बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वहाँ पे मैंने क्या किया, 15 गुड्स किए. 10 गुड्स की जगह पे मैंने क्या किया, वहाँ पे फ्रॉड किया और मानो 15 गुड्स किए. बैंक मुझे लोन सैंक्शन करेगा 15 गुड्स का, बट एक्चुअली कितने गुड्स हैं, गुड्स है 10. ठीक है, दिस इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स. ओके, मिसलीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे मुझे क्वालिटी, क्वांटिटी या अमाउंट जो है उसमें भी क्या करूँगी, चेंजेस करूँगी. इट इज अ मिसलीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, सो यहाँ पे डिफिकल्टी आ सकती है टू द बैंक ऑफ फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी. डिसऑनेस्टी बाय बोरोवर, बोरोवर वहाँ पे डिसऑनेस्टी करेगा, रियल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा टू द बैंक, इज नोन एज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी. ओके, नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हमने अभी डॉक वॉरंट में देखा, इट इज अ क्वासी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ओके, documents of title of goods are not negotiable instrument. It can transfer or endorse by transferee does not get the better title. Okay, हमने देखा क्वासी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर तो हो रहा है, फिर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं, इट मीन्स उसका रिसीट भी ट्रांसफर हो रहा है. ओके, बट हमारा बेटर टाइटल जो है, ओनरशिप का जो टाइटल है, वो ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते. सो दिस इज अ डिफिकल्टी फॉर बैंक. इन केस ऑफ डिफॉल्ट, बैंक को वो गुड्स खुद के नाम पे करनी पड़ेंगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, वहां पे बैंक को क्या होगा, डिफिकल्टी होगी. क्लियर? दीज आर द टू डिफिकल्टीज. फर्स्ट, ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी, फ्रॉड हो सकता है, डिसऑनेस्टी हो सकती है बाय द बोरोवर. सेकेंड, दीज आर ऑल आर द नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट्स नॉट निगोशिएबल है, कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, नेक्स्ट, प्रिकॉशंस. नाउ बैंक को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं while dealing with all such documents. Okay, the first precautions, submission of the real and complete document. जब बैंक ये डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट लोन लेगा, रेलवे रिसीट हो, डॉक वारंट हो, बिल ऑफ लेडिंग हो, इसके अगेंस्ट अगर लोन सैंक्शन कर रहा है, अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट सैंक्शन कर रहा है, बैंक शुड टेक ऑल द रियल एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स. ओके, बैंक ने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बोरोवर से लेने चाहिए. बोरोवर शुड सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी इन द नेम ऑफ कस्टमर. ओके, बैंक ने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके लेने चाहिए जिसका ओनरशिप एक्चुअली बोरोवर का ही है. ओके, फॉर एग्जांपल, रेलवे रिसीट, बैंक रेलवे रिसीट के अगेंस्ट बैंक डॉक्यूमेंट्स अगर ले रहा है, तो वो रेलवे रिसीट पर जो नाम है, वो रेलवे रिसीट की ओनरशिप वो बोरोवर की ही होनी चाहिए. किसी और की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट बैंक लोन सैंक्शन नहीं करेगा. ओके, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का सबमिशन हुआ है, बैंक शुड चेक और बैंक शुड वेरीफाई ऑल सच डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली. बिकॉज हमने देखा इन केस ऑफ डिफिकल्टीज हमने देखा देयर शुड बी रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी. ठीक है, तो बैंक ने देखना है क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, डिस्काउंट, जो कुछ भी है वो प्रॉपरली है कि नहीं, वो बैंक को चेक करना है. क्लियर? नेक्स्ट, एग्रीमेंट बिटवीन बोरोवर एंड बैंक. देयर मस्ट बी एग्रीमेंट signed by borrower and bank. Okay, pledging the documents, bank should ask to sign the agreement with pledging the documents with the bank. Okay, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि वो प्लेज आएगा, प्लेज गुड्स आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जाएंगे. सो बैंक को क्या करना है, एग्रीमेंट करना है विद द बोरोवर. ठीक है, या आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड बैंक वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करेगी और बैंक को उसकी अमाउंट मिल जाएगी. वेरिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड गुड्स. goods of which receipt accepted by bank must be fully insured. जो गुड्स के अगेंस्ट बैंक को रिसीट मिली है, भले वो बिल ऑफ लेडिंग हो, रेलवे रिसीट हो, डॉक वारंट हो, वो जो गुड्स है वो गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड चाहिए. इन केस ऑफ एनी डैमेज, बैंक विल गेट हिज अमाउंट. द लास्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मस्ट बी इशूड बाय रिलायबल पर्सन. ओके, वो जो आपका वेयर हाउस कीपर होगा, शिपिंग कंपनी का जो पर्सन होगा, उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग इशू करने वाला जो पर्सन है, डॉक वारंट इशू करने वाला जो पर्सन है, ही मस्ट बी अ रिलायबल पर्सन, जिसके ऊपर बैंक ट्रस्ट करेगी. ठीक है, जो फाइनेंशियल कैपेबल होगा, उसके अगेंस्ट ही बैंक क्या करेगी, उसको लोन प्रोवाइड करेगी. क्लियर? दिस ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स. इट मीन्स दिस ऑल द रिसीट्स अगेंस्ट विच बैंक कैन sanction the loan amount, but bank should take the precautions like verification of goods, submitting all the documents, and document of title. Document of title must be issued by reliable person. वो reliable person से ही उनको लेना. Clear? These all are the difficulties and precautions taken by